संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं अमिता आंटी को। अमिता आंटी प्लीज आएं और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु संगत को प्रेम भरा नमस्कार। इससे बढ़िया साल की शुरुआत कोई ड्रीम भी नहीं कर सकता। गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के मंदिर के दर्शन, गुरु जी के सामने बैठकर मैं उन पलों को आज आपके साथ शेयर करूंगी जिनसे गुरु जी ने मुझे, मेरे परिवार को, हम सबको ब्लेस किया है। As I remember those days, I'm transported back in time to those blessed moments that I have enjoyed, Sangat ji, sitting, soaking in His grace at Empire Estate. मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा परिवार, मेरे पिताजी के साइड से, my father's family strongly believes and follows the Arya Samaj ideals. I had grown up now, I'll say, with those beliefs. So after marriage, when my husband and I would go to the mandir, I could not understand much. And when it was Guruji's call, when finally it was my time with him, my husband came and told me about Guruji. When we first went to Guruji, I will very honestly admit, I couldn't understand much. Today, I myself want to tell you all, those of you who have just come, you don't have to understand. Please don't even try, because human mind does not, I repeat, the human mind does not have the ability to understand, comprehend Guruji, His divine grace. We just have to believe. We just have to have faith. We just have to rise in our love for Him. हमें सिर्फ प्यार करना है, हमें केवल विश्वास करना है और गुरुजी के चरणों में अपने आप को स्थिर कर उनके बताए मार्ग पर चलते जाना है। जब उनकी मेहर हो जाए, जब उनकी मौज में हम भीग जाएं, उनके प्यार में रम जाएं और स्वयं को उनके हाथों में सौंप दें, तब जीवन सफल हो जाता है। We had come to Guruji for my daughter's medical condition. I will come to this only with you. I will share this with you later. My husband has served in the Indian Air Force. Once we visited my friend whose husband is in the Indian Army. Just as the car entered the gate, I was awestruck. Huge sprawling lawns, I said. And the next moment, I felt what a waste, as the lawns were absolutely barren, devoid of grass, flowers, etc. I just looked up and said, Guruji, अगर ये लॉन मेरे पास होता तो मैं इसे फूलों से भर देती, पर मैं इससे आगे नहीं गई, क्योंकि एक एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ होने की वजह से मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड is not entitled to a residence in that area. पर गुरुजी जब
करते हैं तो क्या एयरफोर्स और क्या आर्मी. A few months later, my husband informed me about his posting. He had been given command of the only tri-service unit in the defense forces. और जैसा हमेशा पोस्टिंग के बाद होता है, पोस्टिंग आने पर होता है, हमने हाउस हंटिंग शुरू कर दी दिल्ली कैंट में. एंड फाइनली we came to bed place. Sangat ji, my joy knew no bounds, as it was the same place where my friend lived, the lawn that I had seen and expressed my desire that it be laden with flowers. We moved into the allotted bungalow. और हर दिन उस घर के लॉन्स में मैं घूमा करती थी और सोचती थी कैसे होगा. एयरफोर्स ऑफिसर के पास इतनी प्रोविजन तो होती नहीं है. लिटिल डिड आई नो दैट as the command of the tri-service unit, he would have ample resources. And to make my dream come true, within a month, a gardener came to us looking for a quarter. That gardener, Sangatji, I would like to tell you, is still in service in the Prime Minister's estate. उस समय मुझे नहीं पता लगा कि उस बेरंग लॉन को देखकर जो मैंने कहा और अधूरा छोड़ दिया था, उस डिजायर को जो मैंने पूर्णतया व्यक्त भी नहीं की थी, उसकी पूर्ति के लिए गुरुजी के हुक्म से सारा चक्र चला. उनकी करनी को समझना हमारे बस में नहीं है. वे सर्वव्यापी परमात्मा, हम उनकी अनंत सृष्टि में एक कण मात्र है. The team that was working in the lawns of the house under the able guidance of the gardener Yadav ji, इतने चाव से वे काम करते थे कि 3-3.5 साल जो हम उस घर में रहे, we won a prize in Delhi area. और उस आशीर्वाद का तो क्या मैं बखान करूं. इतने सुंदर फूल, इतने सारे फूल, और फूलों के बीच में नाचते मोर. हर सुबह जब पूजा के लिए फूल लेने लॉन में घर से आते थे हम लोग, तो मंदिर के ऊपर या उसके आसपास एक मोर पंख फैलाए झूम रहा हमें मिलता, उनकी उस्तत में शामिल होने के लिए. With every passing day, I was drawn to him. In reality, it was time to realize, experience his grace. एक टाइम मुझे याद आ रहा है जब मेरे एल्बो में कुछ महीनों से बहुत दर्द थी, और with every passing day it was growing, it was very intense. And सुबह जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम. In the evening we went to बड़े मंदिर. बेसमेंट में, जो हॉल के नीचे बेसमेंट में लंगर हुआ करता था, वहां से लंगर करने के बाद जब मैं ऊपर आई तो पैंट्री में जो आंटी सेवादार थी, उन्होंने मुझे कहा कि पैंट्री में सेवा के लिए आ जाओ. संगत जी, वहां प्लेट इतनी तेजी से मेरे काउंटर पर आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी. मेरे हाथ ही जैसे
चल नहीं रहे थे, फिर भी मैं अपना प्रयास करती रही और कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। इट वॉज 13 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। मंदिर जाने से पहले मैंने मन में कहा था कि मंदिर में ही मिडनाइट तक रुकेंगे। 14 अक्टूबर मंदिर में गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ बिगिन करके फिर घर आएंगे। पैंट्री में सेवा करते करते 12 बज गए और जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा जो कुछ संगत में सेवादार थे, गिने चुने लोग थे, वो सब चांद की तरफ देख रहे थे। उस दिन मैंने चांद में गुरुजी के दर्शन किए और जो मेरे मन में इच्छा थी, लग रहा था कि हो नहीं सकता, क्योंकि संगत को ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता था उन दिनों में भी। अब लंगर करने के बाद जनरली कुछ देर इधर उधर अब संगत में सत्संग करके आपस में बात करके निकल जाया करते थे, ताकि सेवादार अपनी सेवा पूर्ण कर मंदिर में सब कुछ सुयोजित कर अपना अगले दिन की तैयारी करके वहां से निकल पाए। गुरुजी ने वो इच्छा पूरी की। 14 अक्टूबर हमने मंदिर में ही शुरू किया और अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो दर्द एल्बो की उसका कहीं निशान भी नहीं था। आज तक वो दर्द मुझे नहीं पता। एक और बात डॉक्टर से ही रिलेटेड मुझे ध्यान में आ रही है। गुरुजी की एक बहुत प्यारी संगत जो हॉस्पिटलाइज थी, काफी तकलीफ में थी, उनसे मिलकर मैं जब हॉस्पिटल से निकली, आई एम टॉकिंग ऑफ द बेस हॉस्पिटल, काफी चलना पड़ता है और लग रहा था कि मेन गेट तक आने पर ही मुझे कैब मिलेगी और मुश्किल हो जाएगा। Just then a cab crossed my way. I signaled to the driver. He too signaled back that he would drop the passengers and come back to me. जब मैंने जाती कैब को देखा, उसके पीछे लिखा था शिव आज भी गुरु है। आप अपने मन में कुछ अच्छा भाव लेकर जाओ। मुश्किल दिख रही है कि दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, but if the intent is good, he will make way for you. He will make it happen. I have seen it not once. I have experienced it so many times. Here I would like to request you all, Guru Sangat, जब भी कोई नेक काम में आपका हाथ लगता है, किसी भी प्रकार हम किसी भी अच्छे काम के भागीदार बनते हैं, मैं को मत आने दीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए अपने गुरु का, जिसने उस काम के लिए आपको चुना है। You have been chosen for it, and that in itself is a very big blessing. I'll now share with you the first satsang that we had in that house. 2010 September 1 was the day we had the first satsang in the lawns of the house. मन में इच्छा थी कि जो फूल गुरुजी ने चारों तरफ उनके आशीर्वाद से बिखरे हैं, उनके बीच में सत्संग हो। घर में बहुत चहल पहल थी, उल्लास था। गुरुजी के आने का, उनकी संगत को वेलकम करने की तैयारी चल रही थी। दोपहर 3 बजे के लगभग काले बादल घिर आए, बारिश होने लगी। मन
कांप गया। अब कैसे होगा? हम गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। कहा, गुरुजी आप संभाल लेना। दिल्ली में सब तरफ, एनसीआर में ही, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। संगत के फोन बार बार मेरे हस्बैंड को आ रहे थे। He was telling them सत्संग हो रहा है। They were all asking सत्संग हो रहा है कि नहीं। It was raining so heavily. संगत के कॉल से पता चल रहा था कि it is pouring all over. सबने मुझसे कहा कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर लो। मेरे हस्बैंड भी कहने लगे 300-400 संगत को वेलकम करने की तैयारी की है, एकदम से ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। उस समय गुरुजी की संगत, जिन्हें मैं अपना टीचर कहती हूँ, उनकी कही बात मुझे याद आ गई। उन्होंने एक बार हमारे साथ शेयर किया था कि गुरु का नाम लेकर जब पैर आगे बढ़ाया है तो पीछे हटना नहीं। वॉक holding on to his name, he will see you. अगर डाउट किया और कदम पीछे खींच लिए, फिर वो तुम्हें छोड़ देंगे। To do it on your own. संगत जी, I saw it really happen. For when I was told repeatedly to make arrangements indoors, I repeatedly said no. संगत जी, 7 बजे सत्संग था। 5 बजे के लगभग मौसम क्लियर हो गया और लॉन में मैट्रेस, गद्दे, चादर वगैरह सब बिछने लगी, सब तैयारी होने लगी। और गुरुजी की बाहर जो हर तरफ छलक रही थी, उसके बीच में बैठकर सारी संगत ने सत्संग का आनंद उठाया। मौसम इतना प्लेजेंट हो गया कि जो फैंस, पेडेस्टल फैंस एक्सेट्रा लगाए गए थे, कोई भी यूज नहीं करना पड़ा। गुरुजी ने छाता तान दिया था लॉन्च पर अपनी मेहर का। आज भी संगत बहुत प्यार से उस सत्संग की बात करती है। अनदर ओकेजन, जब सत्संग, अगले साल सत्संग की तैयारी कर रहे थे, तैयारी करने के लिए कुछ गुरु संगत के साथ हम लॉन में खड़े होकर प्लान कर रहे थे कैसे करना है तैयारी में, कि किस तरफ गुरुजी का आसन लगेगा। यही सब बातें जब चल रही थी, मैंने देखा लॉन के सामने जो पोर्च था, उसके ऊपर एक मोर इतनी एक्साइटमेंट में आगे पीछे झूम रहा था। पोर्च की लेज तक आके फिर पीछे चला जाता था, as if in celebration of the moment when Guruji would come once again. सत्संग जब भी हुआ, रात रात भर मोरों का नाचना, उनका गाना हमने देखा है। On another occasion, this was in Bade Mandir. My daughter had come with us to Bade Mandir. She was then, I think, 13 or 14 years old. बच्चे बहुत कम हॉल में बैठते थे। बाहर घूम रही थी, वो कोशिश कर रही थी कि उसे भी और जो दीदी सेवा कर रही है उनके साथ मिलकर के सेवा करने का मौका मिले। She went up to one of them, asking them, requesting them for some seva, to which she was told, बच्चे सेवा नहीं करते, जाओ जाकर बैठ जाओ। She tells me that she just looked up and said, गुरुजी आप बारिश करा दो, बारिश हो जाएगी, सब तरफ भीग जाएगा, फिर मुझे कोई सेवा से नहीं रोकेगा। And that is exactly what happened. It was an absolutely clear day, not a trace of clouds. And
Suddenly, there was a cloud and there was a shower which lasted for not more than 2 or 3 minutes, she tells me. It was enough to wet the open area in the mandir. She quickly picked up a wiper. Guruji had blessed her with what she had asked for. He had granted her the seva that he had asked for. वो हर पल सुनते हैं, हम ही अपनी इम्पेशंस में एहसास नहीं कर पाते. शांत होकर उनके प्रेम में अगर हम कभी बैठे, it is so blissful, it is so fulfilling an experience. अपने चंचल मन के बहाव में इधर उधर भागना व्यर्थ है. उनके चरणों में शांत हो अपने आप को स्थिर कर जीवन जीना ही सही ढंग है जीने का. मैं भी कभी ये बातें सुनकर कहा करती थी ऐसा नहीं होता. But after having experienced it for so many years now, I am requesting the ones who have just come to Him, who have just realized His grace, please enjoy every moment of it and put yourself in His care because He cares like no one else. I'll now share with you about my daughter's medical condition. We had come to Guruji for her, looking for a cure for her. She still is going through the same medical condition. बहुत सारे इन सालों में ऐसे मौके आए हैं, ऐसे ओकेशंस हुए हैं जब it has been clearly evident कि गुरुजी की मेहर से ही आई हुई आपदा टली है. और with these years I have learned from my experiences the divine grace that I have experienced on n number of occasions. Please believe me, I have learned that He who has blessed me with this child is the one who is going to see her through in this lifetime. And I do not know whatever goes on beyond this life. She is doing very well. She is today working, she's a working woman, she's a young girl, full of life, and she has her challenges. But from a mother who was always tense, who was always worried, to a mother who is always at peace, is the change that I've experienced. हमेशा चिंतित रहती थी मैं, पर आज मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि मुझे हर पल एहसास है कि गुरुजी ही है जो हम सबको संभाले हुए. आज भी जब कोई चैलेंज होता है तो उन्हें बताकर मैं अपने मन में बहुत शांति पाती हूँ. और अब कोशिश हम करते हैं कि उनकी रजा में ही खुश रहना है. गुरु जी के पास आकर संगत जी सोच में मैंने बदलाव एक्सपीरियंस किया है. From looking at others, judging others, to looking within. This is one of the changes. और अब
ये प्रयास होता है कि हर पल अपने आप को संवार लेना है, हर पल अपने आप को निखार लेना है, उनकी मेहर में अपने आप को स्थिर करना है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। There were moments, there were days when I would go to the mandir, bow at his feet, and even before bowing, I would start sharing with him, गुरुजी ये हो गया, गुरुजी रिया को ये है, गुरुजी ऐसा है, और कई बार बहुत परेशान होकर रोने लगती थी. So today I find myself, I just go there, or even in the mandir at home, I just bow at his feet and thank him for he's given me this occasion to come and bow, to be with him. बचपन से भगवान के बारे में हम सुनते आए हैं. हर घर में उनका नाम लेने का तरीका अलग होगा, उनको याद करने का तरीका अलग होगा. हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही था. But the way I have experienced him, the way I have felt him, the way I have seen him has rooted me in my faith. It is so easy. Everything is so easy when you come to Guruji. I would also like to share with you some experience, one or two experiences of the gardener whom Guruji sent our way. When he had come to us and when he told me that he works in the Prime Minister's estate, and when he shared with me about all the knowledge that he has, I was very happy and I thought, oh my God, he has been sent for me. This is exactly what I thought. We are so selfish, we can't think beyond ourselves. But Guruji तो परम पिता परमात्मा है, सबका करने वाले, सबका सोचने वाले. He once this Mali Yadav he told me कि वो आज काम नहीं कर पाएंगे because his daughter was admitted at Gangaram Hospital. She had to undergo a surgery, he told me. And then his next sentence was very painful. He said, 15-16 साल की बच्ची है, उसका यूट्रस रिमूव होना, उसके यूट्रस में ट्यूमर है. एंड देन ही सेड, लड़की का धन है, कौन शादी करेगा इससे. एकदम से मन किया उन्हें कहने का कि आप गुरुजी के चरणों में जाकर प्रार्थना कीजिए. वो उन्हें मैं अपने साथ घर में जो गुरुजी का मंदिर है उसमें ले आई. वो माथा टेक कर गुरुजी से अपनी प्रार्थना कर चले गए. 2-3 दिन बाद मैंने उन्हें लॉन्च में देखा, तो आई जस्ट वेंट अप टू हिम to ask him about his daughter, if the surgery had happened and was it fine. And so when I spoke to him, I said, surgery हो गई, बच्ची ठीक है आपकी. I was absolutely taken aback when he told me कि surgery नहीं हुई. He had been telling me that all the tests had been conducted, whether it was an MRI or whatever test required to ascertain the tumor. He said वो टेस्ट सब हो चुके थे और सर्जरी के लिए ले जाते जाते सडनली द डॉक्टर टर्न्ड एंड सेड इसका एक अल्ट्रासाउंड और करना है. It is absolutely amazing that he comes out for this for Yadav, that when the doctor came out, he says, take the child to the ward and we will be discharging her soon. वो एकदम भागे भागे डॉक्टर के पास गए, उनसे कहने लगे कि I have deposited all the fees, I have deposited all the medicines. Why are you not taking her in for the surgery? डॉक्टर ने उनसे कहा
कि आपकी बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं है. He got into an argument. He says, I have all the tests. You have conducted the tests and you have told me about this problem. To which he says that कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, आप उसे घर ले जाइए. एंड देन ही सेड कि ये कैसे हो सकता है. टू विच द डॉक्टर सेड, ये कुदरत का करिश्मा है. संगत जी, यादव जी had told me that for more than a year the girl had been suffering from stomach ache, due to which she had undergone some certain tests which revealed that she had this tumor. And गुरुजी के पास आकर प्रार्थना कर जब वो पिता हॉस्पिटल में गए, he was told कि ट्यूमर बिना सर्जरी के ही गायब हो गया है. This is Guruji's grace. I wish someday he gets an opportunity to share it. Hearing it from him, you would realize how indebted his voice. वो इतने प्यार में मग्न होकर गुरुजी का नाम लेते हैं कि उनकी उस वाणी को सुनकर आनंद आ जाता है. And he says, almost 2 years ago he had come to me with a packet of sweets telling me that बेटी की शादी हो गई है, उसके लिए मिठाई लाए हैं. And today the girl is enjoying her life beautifully, blessed by Guruji. और जिस मन से, जिस भाव से मैंने उनको वहां सेवा करते देखा है, आप विश्वास करें, कोई भी विश्वास कर सकता है सिर्फ देखने के बाद. जब भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट करना कि आई हैव टू रीपे यू, ही वुड जस्ट फोल्ड हिज हैंड्स एंड से नो, मुझे सिर्फ ये बताइए आपको क्या पसंद है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि उस घर के वेजिटेबल गार्डन में उनकी मेहनत से बहुत, मेरे पास गिनती नहीं है कितनी तरह की वेजिटेबल्स होती थी. और एक बार प्रचुर मात्रा में लौकी हुई. उन्हीं जब मुझे इसका पता चला तो मंदिर में जाकर रिक्वेस्ट की, संगत जी वो लौकी मंदिर में हम लेकर के गए और गुरुजी के लंगर प्रसाद में वो बटी. इतना प्रताप, इतना आशीर्वाद उस घर में सबने अनुभव किया गुरुजी का. एंड दैट्स नॉट ऑल. Both Yadavji's sons are today working in the Indian Air Force, and my husband has got nothing to do with it. The way those inductions have happened would only have been possible with Guruji's grace. Just not possible otherwise. आपने उनका नाम लेकर के अपने आप को समर्पित किया है. वो परम पिता परमात्मा आपकी कही अनकही हर बात को सुनकर पूरा करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं. सो यादव जी, मुझे लगता था मेरे लिए आए हैं, पर वो इतनी ब्लेसिंग्स लेकर कि आज गुरुजी का गुणगान करते हैं, मन में उनका प्यार और विश्वास लेकर जीते हैं. I would like to tell you that during those days, this was the last leg of my husband's tenure in the Air Force. During those days, our extended stay in Delhi was made possible only by Guruji's grace to enable us to overcome the most pressing medical condition that I have shared with you.
This extension, again, Sangatji, I'd like to tell you, was absolutely exceptional in the defense environment. Not an easy thing. 7.5 years at a stretch, he served in Delhi. People in the defense, in the defense, when they hear of this, they say, "तुम्हारी बहुत बड़ी पत्ती होगी." They don't. Both my husband and I, we look at each other and we remember Guruji. हमारी तो हर प्रार्थना उन्हीं के चरणों में होती है. And I would also like to tell you that every day we have experienced it. They could not have been a better comeback to the word every morning than to be woken up by the peacock's call. The call that immediately took us to him. And today, sharing this beautiful journey of ours with Guruji, reliving all those moments, has also come as a blessing to us. My husband would like to share a couple of his experiences with you. जय गुरु जी। एक बार बच्चे और अमिता दे हैड गॉन टू लुधियाना एंड आई वाज अलोन इन द हाउस। इवनिंग्स हमेशा लगता है कि गुरु जी के साथ स्पेंड करें, तो वी decided to go to बड़े मंदिर along with my 2 drivers. उस दिन शताब्दी में बच्चे छोटे थे, they were coming back first time alone in the शताब्दी। तो हमने सोचा कि ठीक है, मंदिर जाके लंगर करके, पहला लंगर करके हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और बच्चों को पिक कर लेंगे। रास्ते में when we are going to बड़े मंदिर, उस टाइम पे बड़े मंदिर 7 बजे खुलता था और 9 बजे लंगर शुरू होता था। शताब्दी का अराइवल इज अराउंड 11 o'clock, तो इट वॉज कंफर्टेबल टाइम कि हम जाएंगे 9 बजे लंगर करके अराउंड 9:30 विल स्टार्ट एंड बिफोर 11 विल बी देयर टू पिक अप द किड्स। रास्ते में सतबाड़ी के आसपास आई गेट अ कॉल कि बच्चों की जो रिजर्वेशन हुई है वो अमृतसर शताब्दी में नहीं हुई, लुधियाना शताब्दी में हुई है, जो कि नई ट्रेन चली थी उस टाइम पे, और वो ट्रेन दिल्ली पहुंचती थी अराउंड 10:10। मेरे दोनों ड्राइवर ने बोला कि सर हम किसी भी तरह टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, हम वापस चलते हैं। आई सेड नो, विल गो टू बड़े मंदिर, अपना लंगर करके देन विल गो एंड पिक देम अप। वी वेंट टू बड़े मंदिर, पहला लंगर किया अराउंड 9:30। वी स्टार्टेड फॉर रेलवे स्टेशन। We thought we'll drive little fast and be there on time. उस टाइम पे मेट्रो का काफी काम चल रहा था, तो जब हम रेलवे स्टेशन के लिए जा रहे थे तो रास्ते में काफी हमें मेट्रो के कारण रूट चेंज करना पड़ा एंड वी वर गेटिंग लेट, वी वर गेटिंग रियली लेट एंड वी वर वरीड के बच्चों को प्लेटफॉर्म में अकेले खड़ा होना पड़ेगा एंड किड्स वर अराउंड 11-12 years old।
anyway, we were in touch with kids. फोन पे बात हो रही थी, फोन पे बात हुई, बच्चों ने बोला कि पापा मालूम नहीं ट्रेन अभी कहीं पे खड़ी है, आई थिंक देवर सिंह के प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी है। हम किसी तरह घूम फिर के डिटूर लेके रेलवे स्टेशन में पहुंचे। द मोमेंट वी वर एंटरिंग रेलवे स्टेशन, दैट वाज द टाइम ट्रेन एंटर्ड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। इट इज अमेजिंग। गुरुजी ने वो गाड़ी को प्लेटफॉर्म के अंदर आने ही नहीं दिया जब तक हम वहां पे नहीं पहुंचे। एंड बोथ द ड्राइवर्स वर यंग। वो गाड़ी खड़ी करके भाग के बिफोर बच्चे ट्रेन से उतरते वो वहां पे उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो वी रीच रेलवे स्टेशन अराउंड 10:20, जो कि गाड़ी 10 बजे आनी थी। 10:20 20 मिनट गाड़ी को गुरुजी ने रेलवे स्टेशन के अंदर आने ही नहीं दिया। गुरुजी ये चीजें कंफर्म भी करवाते होते हैं। माई वाइफ वॉज कमिंग बैक एंड शी गॉट रिजर्वेशन इन द सेम ट्रेन एंड हर ट्रेन रीच रेलवे स्टेशन 10 to 10, 10 मिनट पहले पहुंच गई। 9:50 पे हर ट्रेन वॉज इनसाइड प्लेटफॉर्म। तो गुरुजी ने उस दिन आधा घंटा गाड़ी को डिले करके ही इंश्योर्ड के जब तक हम नहीं पहुंचते तब तक वो गाड़ी प्लेटफॉर्म पे ना पहुंचे। ओवर टू अमिता। गुरुजी की फ्रेग्रेंस जब आ जाती है तो कितना आनंद हम सब अनुभव करते हैं, ये आप सब जानते हैं। One time I was at Delhi railway station, no place for no place where you can expect some fragrance, but it is His grace. We were talking about Him. हम उनका शब्द सुन रहे थे, बहुत प्यार से उनका नाम ले रहे थे। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मैं शायद बोल रही थी गुरुजी मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ लुधियाना, मंदिर नहीं आ पाऊंगी, और बस शब्द सुनते जा रहे थे और ट्रेन के आने की वेट कर रहे थे। सडनली there was such a strong fragrance all around us. All of us looked around for somebody carrying a bouquet of roses or somebody wearing a perfume. कोई आसपास था नहीं, ना कहीं roses दिखे. And we all looked at each other and smiled and thanked Him for His grace, His presence. Another time I remember, we had planned, this was sometime in August 2012, we had planned a trip to Andaman and Nicobar Islands, and the bookings were done. We were to travel on the 30th of December, and the bookings were done sometime in August. This time we were traveling to Lakshadweep. So उन दिनों में मंदिर में सेवा करते हुए मैंने सुना किसी को कहते हुए कि गुरुजी ने कहा है इस न्यू ईयर पर मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूंगा, मंदिर में जरूर आना है सबको। ये सुनकर all desire to be elsewhere flew out of my mind, and I came back home and told my husband that do what you will, but please change the booking dates. He looked at me and laughed at me he says, don't you know it is not possible? So गुरुजी के चरणों में माथा टेक कर हम निकल गए।
And 31st December, I still remember, we were at the Naval Mess in Kochi, Naval Officers Institute in Kochi. This is overlooking the lawns, and the dance floor of the mess is overlooking the sea. Just bang on the sea it is. So there was a huge crowd, but there was no one on the dance floor. The the evening was just uh, um, uh, it was just around 8 in the evening, 9 in the evening, and it was still warming up. So people were huddled in groups, meeting each other after a long time and talking. We didn't know anybody there, so all of us, no, my husband and my daughter, they moved towards the dance floor. They went towards the sea, and then came almost in the center of the dance floor and started talking to each other. After a while, I received a call on my cell, and they said that we are in on the dance floor. Just come along quickly. And I rushed there. And the moment I reached there, I could once again experience that divine fragrance. It was so strong. Sangaji, we stood there for almost 15-20 minutes, maybe even more, just enjoying that moment. It stretched and we wanted it to go on and on. We were receiving, welcoming His grace. I wanted to be with Him, and He made sure that all of us were with Him, not in the mandir, but wherever we were for those moments in His grace, enjoying every moment. During the same trip, we were in the backwaters, and late at night, everybody had gone off to sleep. I was recollecting the trip so far, and I was just thanking Him for all the fun that we've had. And I just said it would have been so nice. गुरुजी, मैं आपको देख लेती, आप हो तो यहीं पर, मुझे दिख नहीं रहे हो. और अगले दिन सुबह जब हमारी बोट वापस शोर की तरफ आ रही थी, that was the time when many boats were moving towards the seashore, and they were all neck to neck. उन सब के बीच में से एकदम से एक बोट आई, रेड इन कलर, और उस पर गोल्ड से लिखा था गुरु. मेरे लिए वो मेरी एक रात पहले की जो प्रार्थना थी उसका आंसर था. सो आप उनको प्यार से कहीं पर भी कभी भी याद करो, वो हर पल हमें एहसास करा देते हैं. अगर कभी ट्रैवल कर रहे हैं, मन बहुत परेशान है किसी बात से, कुछ चिंता हो गई घर में किसी के साथ, किसी भी बात को लेकर के, तो एकदम से सामने से गाड़ी निकलती है जिसपे लिखा है गुरु राखा. गुरु जी का नाम गाड़ी पे पढ़ के गुरु राखा पढ़ लिया या उनका नाम पढ़ लिया, लगता है हर पल एहसास होता है वो हमारे साथ है, हम उनकी मेहर में है. सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना है हर पल अपने आप को संवार लेने का. ये मैंने एक्सपीरियंस किया है उनके साथ रहकर, उनके पास रहकर. नहीं तो पहले क्या होता था, मैं परफेक्ट हूँ, जो भी गलती है आसपास है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं. लेकिन इनके पास आकर बिना इनके कुछ कहे जी मन होता है कि अपने आप को इनके चरणों में बने रहने के लिए संवार ले.
निखार लें। I thank you all for giving us these blissful moments. मैं मंदिर में ये कार्यक्रम जो आयोजित करते हैं उनके प्रति भी अपना आभार प्रकट करती हूँ, हमें ये सुनहरे पल दोबारा जी लेने के लिए आपने जो अवसर दिया। थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरु जी।